Hello students, welcome to BIMT YouTube channel. So students, this is a lecture of our HR02, that is Performance and Reward Management. So today we will discuss our next topic in this lecture, and our topic is methods of payment, that is time and PCP. So today we will discuss about methods of payment. Before this we had discussed in our previous lecture about what are the payment structures or pay structures. So today we will discuss about the methods of payment, and it is time and piece rate method. So what is it? To select the best payment method, it can be helpful to think about it in terms of the above risk ladder. The nature of the relationship with your buyer may also determine the settlement methods used. So there are some methods of payment, कुछ methods हैं यहाँ पे जिन्हें हम discuss करेंगे. जिसमें हम पहला method को discuss करेंगे, it is payment method number 1. It is open account. Payment method number 1, जैसे कि payment method है, payment method का number 1 है, it is open account. It is very simple. This is probably the least secure payment method for you as the exporter. Your buyer receives the goods and then pays to them, usually with the credit period attached. तो यहाँ क्या है, सिंपल मेथड है. आप सेलर और बायर दो पार्टीज हैं. बायर ने गुड्स रिसीव करे और गुड्स रिसीव करने के बाद वो सेलर को या आपको पेमेंट देगा, और वो पेमेंट का जो है यूजली कुछ क्रेडिट पीरियड होगा, मे बी इट इज 30 days, 60 days और 90 days. This payment method extends the period before which your business receives cash and your working capital position will be impacted. Further, it is a period of credit applies. तो ये method जो है आगे भी extend हो सकता है. The period before which your business receives cash, जब तक आपके बिजनेस को कैश नहीं मिल रहा है, and your working capital position will be impacted. और साथ ही साथ जब कैश नहीं मिलेगा तो आपकी वर्किंग कैपिटल पोजीशन भी इम्पैक्ट होगी. वर्किंग कैपिटल इट इज डे टू डे एक्सपेंसेस और रिक्वायरमेंट्स एंड आवर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स. Then you might consider offering this option under the following circumstances. तो ऑप्शन नंबर 1 देने के लिए भी हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान में रखना है. That you have an established relationship with the buyer. आपके बायर से रिलेशनशिप अच्छे हैं तभी आप उसको क्रेडिट दे सकते हैं. Then the buyer is a multinational business with strong buying power and strong buyer credit rating. और बायर जो है वो भी एक मल्टीनेशनल बिजनेसमैन हो और साथ ही साथ उसकी स्ट्रॉन्ग बाइंग पावर और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट टू पे क्रेडिट, ये भी पावर उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. Then smaller value exports. So these all are the points in option number 1, that is payment method. Payment method का option number 1 था, that is open account. Next we will discuss payment method number 2. Payment method number 1 is open account. Payment method number 2 is bank collection. So this is the more secure option in comparison to open account. ये वाला option ज़्यादा secure हो सकता है. Then an open account whereby, as the name suggests, your bank collects the money on your behalf. ये ज़्यादा secure method है as comparison to open account. और यहाँ पे क्या है, your bank collects the money on your behalf. हमारे behalf पर हमारा बैंक हमारी money collect करता है. It is also known as documentary collection. तो इसको documentary collection भी बोलते हैं. An instruction document is forwarded by your bank to your buyer's bank. जो एक इम्पॉर्टेंट या इंस्ट्रक्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका बैंक आपके बायर्स बैंक को फॉरवर्ड करेगा फॉर रिलीज अगेंस्ट ईदर पेमेंट और एक्सेप्टेंस. चाहे आपके अकाउंट से पेमेंट होनी हो या आपके अकाउंट में पेमेंट आनी हो. पेमेंट एक्सेप्टेंस मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस. Then this can be a good way of meeting in the middle with your buyer, wherein the risk is reduced for you both. तो एक ही अच्छा तरीका हो सकता है बायर और सेलर के बीच में कि मिडल रास्ता हो सकता है जिसके थ्रू बैंक एक मेन रोल प्ले कर रही है और आपके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट भी कर रहा है और पेमेंट पे भी कर रहा है. Then it is also not a time consuming or costly as a letter of credit method. अब थर्ड मेथड लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ेंगे. तो ये बोला गया है इस मेथड में ऑप्शन नंबर 2 में, दैट इज बैंक कलेक्शन, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग या कॉस्टली मेथड नहीं होता. Then we will move to payment method number 3, and it is letter of credit. What is it? A letter of credit is essentially a bank's promise to another bank that they know you. लेटर ऑफ क्रेडिट एक essentially क्या करता है, बैंक प्रॉमिस करता है अनदर बैंक के आपके बिहाफ, क्योंकि बैंक आपको अच्छे
गारंटी बैंक है। You need both banks party to the transaction to agree to this day। और आपको तो दोनों ही बैंक्स पार्टी के एग्रीनेस चाहिए, वो एग्री हो, ये दोनों ही चीजें जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि एक बैंक आपका गारंटर है और वो दूसरी बैंक से डील कर रहा है, तो दोनों बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन ऑफ एग्रीमेंट शुड बी डन। Once it is agreed, it is in the event that your buyer is unable to make payment, the bank will cover and pay the outstanding amount। एक बार दोनों बैंक्स में एग्री हो गई है अगर, तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि आपका बायर आपका पैसा टाइम पे पे नहीं कर रहा, तो बैंक उस लॉस को कवर कर सकती है, will cover and pay the outstanding amount, provided that certain delivery conditions have been met। One of the most important thing to be noted from a payment method perspective is that if ever you receive a letter of credit, ensure you give it to your immediate attention and check in detail। इस मेथड को यूज करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि जब भी आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो तो आप उसकी डिटेल्स को प्रॉपर्ली इंश्योर करें, प्रॉपर्ली रीड ऑन कर लें। रिमेंबर इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट शुड लीड टू योर बिजनेस बीइंग पेड ऑन टाइम। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट है और इसमें मेनली क्या है कि आपके बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी अमाउंट पे होना है, एक्सेप्ट होना है, वो टाइम पर हो सके। लैक ऑफ अटेंशन टू डिटेल कुड डिले पेमेंट एंड कॉस्ट में, और अगर लैक ऑफ अटेंशन होगी तो वो हर तरीके से हमारे लिए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। देयर विल बी अ डिले इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट और प्रोसेस ऑफ अ बिजनेस। सो दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट, इट इज अ डॉक्यूमेंट। सो नेक्स्ट पेमेंट मेथड इज एडवांस पेमेंट। व्हाट इज एडवांस पेमेंट? This is most advantageous method for you as the exporter as well the buyer has to pay for the goods before they receive them। Consumers essentially do this every day when purchasing online, being charged there at the time of order। तो ये कौन सा मेथड है? ये मेथड है एडवांस पेमेंट और मोस्टली एडवांटेजेस मेथड है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आप या हम सभी इसको यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। हमने कुछ सपोज ऑनलाइन मंगवाया और हमने उसकी पहले ही पेमेंट कर दी और प्रोडक्ट हमें बाद में रिसीव हुआ। सो दिस काइंड ऑफ पेमेंट जो हम बिफोर रिसीविंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड, दैट कम्स अंडर दिस, दैट इज एडवांस पेमेंट। सो दिस मेथड इज एडवाइजेबल। ये मेथड एडवाइजेबल है, कुछ सर्कमस्टेंसेस है जो हमें ध्यान रखने हैं। You have a new relationship with the buyer where there is a lack of trust between buyer and seller। अगर आप न्यू बायर हैं तो मे बी देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट, बायर और सेलर में ट्रस्ट नहीं होगा। बहुत बार होता है हम कहीं किसी भी ऑनलाइन अमेजोन या किसी अदर शॉपिंग ऑनलाइन शॉपिंग से हम कुछ मंगाते हैं, बट हम कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि हम पहले पेमेंट क्यों करें। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट। Then the buyer does not have a strong credit rating, then you sell a unique or rare product of high value। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। So these are some options जो हमें अपने दिमाग में रखने हैं, ओपन अकाउंट हो या अदर ऑप्शंस जितने भी हमने यहाँ पर पढ़े हैं। So these are some payment options। Now we will move to our next that is time rate system। पेमेंट मेथड में पहला जो हमें टाइम रेट सिस्टम मेथड पढ़ना है, हम उस पर आते हैं। अभी तक अपने ऑप्शंस पढ़े थे पेमेंट के, दैट इज टाइम रेट सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन और द टोटल वेजेस आउटस्टैंडिंग टू द वर्कर्स डिपेंड ऑन द टाइम फॉर व्हिच ही इज एम्प्लॉयड। टाइम रेट सिस्टम जैसा नाम है वैसे यहाँ पे इसका काम है कि टाइम रेट सिस्टम में आप एम्प्लॉयज को टाइम के अकॉर्डिंग जज करते हैं कितने टाइम उन्होंने काम किया और उसी के अकॉर्डिंग उनकी वेजेस डिफाइन किए जाते हैं। इट इज डिपेंड्स ऑन द टाइम फॉर विच ही इज एम्प्लॉयड। कितने टाइम के लिए हमने उसे एम्प्लॉय किया ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसको वेजेस पे किए जाएंगे। दिस इज अ सिंपल एंड कॉमन मेथड फॉर वेज पेमेंट। जितने घंटे काम किया, कितना टाइम काम किया, ये सब ध्यान में रखा और उसके वेजेस पे कर दिए। तो ये सबसे सिंपल मेथड है पेमेंट ऑफ वेजेस का। इन दिस मेथड the workman is paid an hourly, daily, monthly और yearly rate of wages। तो इस मेथड के अंदर हम घंटों के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। Thus the worker is paid on the basis of time but not on his or her performance or unit of output। कितने मेहनत है, क्या परफॉर्मेंस है, इन सब के अकॉर्डिंग वर्कर को यहाँ पे पेमेंट नहीं होता, सिर्फ टाइम के हिसाब से कि कितने घंटे कितने टाइम में उसने कितना काम किया, टाइम के हिसाब से सिर्फ यहाँ पे पेमेंट किया जाता है। A number of wages payable to a workman under this method is to be calculated as follows। तो इस मेथड के अंदर जो पेमेंट हम वेजेस पे करेंगे वो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे, टाइम में टोटल
फॉर्मूला यूज किया जाएगा टोटल वेजेस निकालने के लिए कि कितना टाइम उसने काम किया। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि एक्चुअल टाइम टू एक्चुअल में कितना टाइम लिया उसने और टाइम हमारा 1 घंटे के हिसाब से टाइम रेट क्या है उससे उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वेजेस में क्या आएगा, टोटल वेजेस इज इक्वल्स टू टोटल आवर्स वर्क्ड इनटू वेजेस रेट पर आवर कि टोटल कितने घंटे उसने काम किया और पर घंटे के हिसाब से उसके कितने वेजेस बैठे। तो ये है टोटल वेजेस। टोटल वेजेस कैसे निकलेंगे, तो हमारा फॉर्मूला है टोटल वेजेस। तो टोटल वेजेस कैसे निकलेंगे वो भी बता दिया और फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल टाइम टू इनटू टाइम रेट, इट इज द फॉर्मूला। जब हम टाइम रेट सिस्टम से कैलकुलेशन करते हैं वेजेस पे करने के लिए तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ टाइम रेट सिस्टम। एडवांटेजेस क्या है सिस्टम की, सिंपलिसिटी, सिंपल है, इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेस, वेजेस मिनिमम वेजेस तो मिलेंगे उसने 1 घंटा ही काम किया तो 1 घंटे के लिए उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। देन क्वालिटी प्रोडक्शन, सिंस द नंबर ऑफ वेजेस रेट इज नॉट लिंक्ड टू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, दिस मेथड एंश्योर प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी ड्यू टू द केयरफुल अटेंशन ऑफ द वर्कर्स। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, टाइम के हिसाब से पैसा मिलेगा, उस टाइम में हमने क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन किया उस पर ध्यान दिया जाएगा या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता। नेक्स्ट, यूनिटी अमंग वर्कर्स। अंडर दिस सिस्टम ऑल वर्कर्स फॉलोइंग अंडर अ पर्टिकुलर कैटेगरी so are paid at an equal rate without any calculation of their quantity of output। तो यहाँ पे जितने वर्कर सेम टाइप का वर्क कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें तो टाइम के हिसाब से मिलना है वेजेस, तो क्वांटिटी के हिसाब से मिलना नहीं है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट के हिसाब से मिलना है, तो वर्कर्स में भी यूनिटी होती है टू डू अ वर्क। सो इकोनॉमिकल है, चीपर है, इट इन्वॉल्व लेस क्रिटिकल वर्क एंड डिटेल रिकॉर्ड्स आर नॉट नेसेसरी। हमें डिटेल रिकॉर्ड्स नहीं बनाने हैं एम्प्लॉइज के कितनी हम उनको टाइम के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं एंड द आउटपुट इज नॉट द क्राइटेरिया। यहाँ पे आउटपुट नहीं है क्राइटेरिया किसी को वेजेस देने का, मेन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे टाइम है, उसी के अकॉर्डिंग वेजेस दी जाएंगी और 1 घंटे कितने घंटे काम किया, किस तरीके का क्वालिटी ऑफ वर्क किया, इस सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। सो दिस ऑल कम्स अंडर द एडवांटेजेस ऑफ टाइम बेस्ड सिस्टम। So now we will discuss the disadvantages of time-based system. What are the disadvantages? It has no incentive to the efficient workers. सिर्फ टाइम के हिसाब से क्वालिटी ऑफ वर्क देखा जाएगा, कोई इंसेंटिव या इस तरीके के अदर बेनिफिट्स एम्प्लॉइज को नहीं मिलते। Then go slow policy. The worker in order to earn more wages may try to perform the work slowly. तो गो स्लो पॉलिसी है, वर्कर्स ज्यादा वेज क्योंकि टाइम के हिसाब से मिलेगा तो वर्कर एक काम को करने के लिए धीरे धीरे करते हैं, स्लोली करते हैं और 1 से ज्यादा घंटे टाइम लगाते हैं। जिस काम को आधे 1 घंटे में हो जाना चाहिए उसे 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगाएंगे कि उनके वेजेस इंक्रीज हो सके। सो दिस इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज। देन डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एफिशिएंट वर्कर्स। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर का यहाँ कोई जजमेंट नहीं है, इसीलिए एफिशिएंट वर्कर्स बहुत बार डिससेटिस्फाइड होते हैं, दे आर अनहैप्पी बिकॉज उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उन्हें पेमेंट नहीं हो रहा, अब पेमेंट इज अकॉर्डिंग टू द टाइम और आवर्स। देन पेमेंट फॉर आइडल टाइम। अंडर दिस मेथड आइडल टाइम ऑफ वर्कर इज आल्सो पेड दैट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये भी एक इनका डिसएडवांटेज है कि खाली टाइम में भी हम पेमेंट, वर्कर बैठा है उस टाइम पे भी हम उसे पेमेंट कर रहे हैं whether he is doing the job or not. Then high cost of supervision. There is no direct link between quantity of output and wages. Wastage of time on the part of worker is common and negligence of which requires considerable supervision. तो सुपरविजन का टाइम ज्यादा है, यहाँ पे हाई कॉस्ट ऑफ सुपरविजन है कि ये ध्यान रखना है कि किसने कितनी देर काम किया, कितने घंटे काम किया, तो ये इसलिए सुपरविजन ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो इसकी हाई कॉस्ट होती है सुपरविजन की। सो दिस इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज। सो दिस ऑल कम्स अंडर द टाइम रेट सिस्टम। तो ये हमारा पेमेंट मेथड था टाइम रेट सिस्टम। दूसरा हमारा पेमेंट मेथड है पीस रेट सिस्टम। तो अब हम पीस रेट सिस्टम पढ़ेंगे। इन दिस मेथड वेजेस आर पेड टू एम्प्लॉइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। यहाँ पे टाइम के हिसाब से वेजेस नहीं होगी, यहाँ पे एम्प्लॉइज को वेजेस तभी दिए जाते हैं जब एक पर्टिकुलर वर्क उन्हें दिया है और वो कंप्लीट हो जाता है। जब वो वर्क को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद उन्हें वेजेस पे किए जाएंगे। Under it, a worker is paid on the basis of output, not on time taken value. बिल्कुल अपोजिट है टाइम रेट सिस्टम का पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम में हम वर्कर को आउटपुट के हिसाब से पे करते हैं, वहां पे आउटपुट के हिसाब से हम पे नहीं कर रहे थे। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। इन दिस मेथड द वेज रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर जॉब और पर वर्क ऑर्डर। यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, नहीं, यहाँ पे किस हिसाब से वेजेस डिफाइन किए जाते हैं एज पर यूनिट ऑफ आउटपुट क्या दिया या पर जॉब कितना
फॉर्मूला था, पीस रेट सिस्टम का भी एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ वेजेस कैलकुलेट करेंगे एंड इट इज टोटल वेजेस इज इक्वल्स टू टोटल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सिंपल है, टोटल वेजेस निकालने के लिए टोटल आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्योंकि हम पर यूनिट ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग ही वेजेस पे किए जाते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीस रेट सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ पीस रेट सिस्टम। इट इज अ सिंपल मेथड, सिंपल है, आप पर रेट ऑफ आउटपुट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंसेंटिव भी है यहाँ पे वर्कर्स के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छे से गोल्स को अचीव कर रहे हैं, उनको यहाँ पे इंसेंटिव्स पे किए जाते हैं। As such, payment of accurate labor cost, piece rate system में wages are paid on the basis of output. The exact cost of labor per unit of output और job can be estimated. यहाँ पे आसानी से हम पर यूनिट कितना वर्क किया एस्टिमेट या कैलकुलेट कर सकते हैं और हर एम्प्लॉय को जो वेजेस पे होते हैं उनका मेन बेस है आउटपुट। नेक्स्ट, नो पेमेंट फॉर आइडल टाइम। यहाँ पे आइडल टाइम के लिए कोई पेमेंट नहीं है जैसे कि टाइम बेस्ड सिस्टम में था। प्रॉपर केयर एंड यूज ऑफ मशीन्स एंड टूल्स, जिसके थ्रू मशीन्स एंड टूल्स के थ्रू वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनका प्रॉपर केयर, रिपेयर, जो भी चीजें हैं उनको ऊपर ध्यान रखा जाता है, वर्कर्स भी उनका प्रॉपर ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से मशीन्स एंड टूल्स प्रॉपरली वर्क करते रहे, वर्क करते टाइम किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम या ब्रेकडाउन की सिचुएशन ना आए। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ पीस रेट सिस्टम। सो लेस अटेंशन टू क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी की तरफ लेस अटेंशन दी जाती है बहुत बार, क्योंकि आउटपुट इज द मेन बेस टू डू अ वर्क। इनएफिशिएंट यूज ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल्स, बहुत बार जो है सिंस द वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड एक्सेसिव वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, मशीन्स का फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन भी हो सकता है। यहाँ पे मेन पेमेंट करने का तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ही एक रीजन, एक बेस है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल्स। देन नो गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेस, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड वेजेस, कितना क्वालिटी ऑफ आउटपुट दिया और कितने वेजेस मिलेंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो किसी भी मिनिमम वेजेस की कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है। देयर इज नो गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स। Dissatisfaction among inefficient workers. Inefficient workers who work slowly become dissatisfied by reason of lower wages as compared to wages paid to their efficient counterpart. अब यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन है इनएफिशिएंट वर्कर्स का, क्योंकि इस सिस्टम में, इस मेथड के अंदर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को जज किया जाता है। एफिशिएंट पर्सन्स को इंसेंटिव्स पे किए जाते हैं, तो जो इनएफिशिएंट पर्सन है, जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, स्लोली वर्क कर रहे हैं, टाइम पे अचीव नहीं कर पा रहे, अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो उनके बीच में ये डिससेटिस्फैक्शन रहता है। Adverse effect on workers' health. The workers may try to work normally to earn more, which has an adverse effect on their health and efficiency. तो workers यहाँ पे क्योंकि पर कॉस्ट पर, लेबर कॉस्ट पर आपका क्या कहते हैं, क्वालिटी के हिसाब से आपको पेमेंट होता है, यहाँ पे बेसिस जो है आउटपुट है, तो कितना जल्दी आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट करोगे उतना ज्यादा आपको वेजेस मिलेंगे। तो इस केस के इसके चक्कर में बहुत बार हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देना चाहते हैं, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा वेजेस को अर्न कर सके। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ पीस रेट सिस्टम। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे and thank you. Have a nice day.